morning students, I welcome you all to the online class of SGY. So we were doing chapter number 12 that is based upon the algebraic expressions and we have discussed till exercise 12D. Today we will be starting exercise 12E that is based upon the addition. Okay. So how do we add the given two terms of an algebraic expression? Question number 1, first part is saying that you have to add 7x and 9x. Okay. So what we can do, we will be writing 7x plus 9x. ठीक है, because both are like terms, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर देंगे. It will give us 9 plus 7 16 और x, तो आंसर would be 16x. ठीक है, चलिए एक पार्ट और देखते हैं. थर्ड पार्ट, it is given that you have to add 8xy, comma 7xy and xy. ठीक है, then what you will be doing, you will be adding 8xy plus 7xy plus xy. ठीक है, इसके पास भी xy है, इसके पास भी xy है और इसके पास भी xy है. दैट मींस तो तीनों टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स हैं. देयरफॉर फिर से क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को ऐड कर देंगे. 8 plus 7 15 plus 1 16xy will be the answer of this question. ठीक है, so let's take one more, 8th part. In 8th part it is given 1 upon 3x square y, comma 3x square y. So what you will be doing, इसमें भी देखिए x square y इसके पास भी है और सेकंड टर्म में भी x square y है. therefore both the terms are like terms और like terms है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो what you will be doing, कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करो. 1 plus 3 plus 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 और x square y. ठीक है, so this will be giving you LCM will be 3, 3 1 is 3 plus 1, 1 3 is 3, 3 3 is 9, x square y. So this will be 10 upon 3 x square y will be the answer of this question. ठीक है, so similarly you can solve all the other parts of question number 1. Okay, so let's move to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फिफ्थ पार्ट बताता हूँ आपको, सिर्फ एक बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट, इट इज गिवन यू हैव टू ऐड 4m square n comma minus m square n comma minus 6m square n. ठीक है, what you will be doing, you will be writing in terms 4m square n plus minus m square n प्लस माइनस 6m square n. ठीक है, ये टर्म्स को आपको ऐड करना है. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, 4m square n प्लस और माइनस माइनस m square n प्लस माइनस माइनस 6m square n. ठीक है, m square n इसके पास भी, m square n इसके पास भी, m square n इसके पास भी. दैट मींस तीनों टर्म्स कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं. Therefore हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, दिस इज 4 minus 1 3, तो हो गया 3 और उसके बाद 3 minus 6, 3 और minus 6 कितना आएगा, -3 आएगा. isn't it, it will be minus 3m square n will be the answer of this question. ठीक है, so I hope you have understood कि -3m square n जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ठीक है, तो सिमिलरली आप बाकी सारे पार्ट्स ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. अगेन देयर आर की ऐड ही करना है आपको. आई विल बी टेलिंग टू पार्ट्स ऑफ इट. लेट्स से पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 इज सेइंग यू हैव टू ऐड -2ab square comma -8ab square comma 5ab square, 5ab square. So what you will be writing, you are again writing -2ab square plus -8ab square plus 5ab square. ठीक है, so this will be -2ab square plus -8ab square और plus 5ab square. ठीक है,
इसके पास भी ए बी स्क्वायर है, इसके पास भी ए बी स्क्वायर और इसके पास भी ए बी स्क्वायर। सिंस तीनों कैसे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो हम सिर्फ कांस्टेंट्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। -2 और -8 कितना होता है, -2 और -8 इज -10 और -10 और +5 विल गिव यू -5, तो आंसर would be -5 AB square is the answer of this question, ठीक है। Let's see one more part, part number 8. It is given -1/2 a square, -1/2 a square, comma -1/3 a square and 2a square, ठीक है, 2a square। सभी को क्या करना है, ऐड करना है। सो अगेन क्या करेंगे, -1/2 a square प्लस -1/3 a square प्लस 2a square, ठीक है। So this will give us -1/2 a square plus -1/3 a square and plus 2a square, ठीक है। इसके पास भी a square, इसके पास भी a square और इसके पास भी a square। इसका मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिख दोगे आप, -1/2 -1/3 प्लस 2 और बाहर a square, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स पहले का -1/2, दूसरे का -1/3 और तीसरे का 2, तो कांस्टेंट टर्म्स को ही ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है अगर सारे लाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, तो 1 मान लो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 3 जा 6, 3 into -1 -3, 3 2 जा 6, 2 into -1 -2, 1 6 जा 6, 6 into 2 12, ठीक है। दिस विल -3 और -2 -5 होगा, -5 और +12 करोगे तो प्लस का 7 आएगा, तो आंसर विल बी 7/6 प्लस का 7/6 a square will be the answer of this question, ठीक है। चलिए similarly you can try all the other parts of this question number 3. Now let's move to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग, फिर से आपको क्या करना है, ऐड करना है, सम निकालना है, तो गिवन है क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज सेइंग 8a - 3b 8a - 3b कॉमा सॉरी प्लस 11c भी है, प्लस 11c कॉमा 5b - 6a 5b - 6a प्लस 7c कॉमा एंड 9c 2a 9c प्लस 2a माइनस 8b, ठीक है। अब आपको इन तीनों एक्सप्रेशंस को क्या करना है, ऐड करना। अभी तक जो एक्सप्रेशंस आप ऐड कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ही टर्म होता था, इसमें 1 2 3 तीन टर्म इसमें है, 3 टर्म इसमें है और 3 टर्म इसमें। इसका प्रोसीजर क्या है, हम लोग कॉलम मेथड का यूज करेंगे, कॉलम मेथड, ठीक है। इसके लिए अगर पहले वाले क्वालिटीज नोट कर दो, 8a - 3b प्लस 11c, ठीक है। अब सेकंड एक्सप्रेशन में आप जाओगे, b के नीचे b लिखोगे, a के नीचे a और c के नीचे c लिखोगे। तो 8a है, यहाँ पे कितना है -6a, तो लिखोगे -6a। यहाँ 5b है तो यहाँ पे लिखोगे सॉरी प्लस का है ना, तो प्लस 5b। यहाँ पे 11c है, यहाँ पे 7c प्लस 7c। मतलब लाइक टर्म्स को एक लाइन में आपको नोट करना है, ठीक है। लास्ट एक्सप्रेशन में जाएंगे तो a के बदले क्या लिख, a का टर्म दिया है +2a, b का टर्म दिया है -8b और c का टर्म दिया है प्लस का 9c। जब कुछ नहीं होता मतलब प्लस का साइन होता है, ठीक है। अब इनको ऐड करना है आपको। इसके पास 8 है, 8 - 6 विल गिव यू 2 और 2 + 2 4, तो यहाँ पे होगा 4a। नाउ लुकिंग टू b -3 और +5, माइनस प्लस इज माइनस और साइन किसका लगता है, बड़े वैल्यू का, बड़ा वैल्यू पॉजिटिव वाला है, तो इसलिए 5 - 3 2 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो +2 और -8 विल गिव यू -6, तो -6b विल बी हियर। नाउ कमिंग टू लास्ट, सारे पॉजिटिव है तो एज इट इज ऐड कर देंगे। 11 + 7 will give you 18 and 18 + 9 will give you 27. So here it will be plus का 27c
and this is the procedure how you will be adding the given algebraic expressions by the use of column method. ठीक है, तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कर लेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. Now in question number 7, the question is given 10x square plus 8x, 10x square plus 8x minus 7, ये एक एक्सप्रेशन है. सेकेंड एक्सप्रेशन इज गिवन 3x minus 13x square, 3x minus 13x square plus 5 and third expression is given that is equal to 9 minus 6x, 9 minus 6x minus 5x स्क्वायर. ठीक है, फिर से वही प्रोसेस, फर्स्ट वाले को एज नोट करोगे 10x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7. ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म क्या है माइनस 13x स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 13x स्क्वायर. x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला टर्म लिखोगे, x के नीचे x वाला टर्म तो प्लस 3x, सिमिलरली कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला टर्म प्लस 5. लास्ट एक्सप्रेशन में देखेंगे x स्क्वायर का टर्म कितना है माइनस 5x स्क्वायर, x का टर्म है माइनस 6x और कांस्टेंट टर्म है प्लस का 9. नाउ अगेन यू हैव टू ऐड. ओके, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 13 इज अ बिगर वैल्यू. तो 13 माइनस 10 कितना आएगा 3, वो भी नेगेटिव साइन के साथ. तो माइनस 3 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव का माइनस 8x स्क्वायर. ठीक है, कमिंग टू सेकंड, 8 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, सीधे ऐड होगा 8 प्लस 3 11x, 11 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 प्लस 5x. एंड कमिंग टू लास्ट माइनस 7 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, अगेन साइन बिगर वैल्यू का नेगेटिव साइन आएगा. 7 minus 5 will give you 2, minus 2 और plus 9 will give you plus 7. So minus 8x square plus 5x plus 7 is the solution of this question number 7. Similarly question number 8 भी आप कर सकते हैं और question number 10 और 11 और 12 भी कर सकते हैं. I will be telling one more question, that is question number 9. Question number 9, it is given 3x square minus 1 upon 5x plus 7 by 3, plus 7 by 3. This is the first algebraic expression. Second expression is minus 1 upon 4x square, minus 1 upon 4x square plus 1 upon 3x, plus 1 upon 3x plus 1 by 6. Okay, sorry, minus 1 by 6 है. This is second और last expression है. Last expression is minus 2x square, minus 2x square minus 1 upon 2x and plus 1 by 5, plus 1 by 5. ठीक है, so again we have to follow the same procedure by the column method. What we can do, we can first of all write the first expression. This is 3x square minus 1 upon 5x plus 7 upon 3. Okay. Next one is minus 1 upon 4 x square, नीचे x square का टर्म आएगा, x के नीचे 1 upon 3x का टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखिए. ठीक है, लास्ट वन इज minus 2x square minus 1 upon 2x and plus 1 upon 5 and now you have to add. ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे नॉर्मल इंटीजर है, यहाँ फ्रैक्शन 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 सारे फ्रैक्शन है. ठीक है, सो फॉर दिस व्हाट यू कैन डू, अभी इतने क्वेश्चन करने के बाद यू हैव द आइडिया कि लाइक टर्म्स होते हैं वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ये सारी ये वाले जो कॉलम है दिस इज लाइक टर्म का कॉलम, ये दूसरे लाइक टर्म का कॉलम है और इसको तीसरे लाइक टर्म्स का कॉलम है. एंड वी नो दैट हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके कांस्टेंट टर्म्स को अलग ऐड कर लेते हैं. तो दिस विल गिव अस 3 minus 1 by 4 and minus 2
ऐड करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 1 4 जा 4 एंड 4 into 3 12 माइनस 4 1 जा 4 और 1 into -1 ही होगा। This 1 4 जा 4 4 into -2 will be -8, ठीक है। This will be -8 और -1 होगा -9, तो 12 -9 will give you 3/4, ठीक है। तो यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी 3/4। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3/4 और x स्क्वायर के टर्म्स आ रहे हैं, देयरफॉर x स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट रो को ऐड करने में मिला आपको 3/4 x स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली आप सेकेंड वाले कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज -1/5, दिस इज +1/3 एंड दिस इज -1/2, ठीक है। सो 5 3 और 2 का एलसीएम आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल बी आई गेस 30, ठीक है। 5 3 और 2 का एलसीएम होगा 30, you can write 30 here, right, like this. So 5 6 is 30 and 6 into -1 will give you -6. 3 10 is 30, 10 into 1 will give you +10. 2 से डिवाइड करोगे 30 को तो 15 टाइम्स जाएगा, 15 into -1 will give you -15. नेगेटिव टर्म्स को अलग ऐड कर लेते हैं, तो -6 और -15 will be -21, -21 और +10 कितना देगा, -11। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी -11/30। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे -11/30 और टर्म किसके हैं, x के, तो x लिखते हैं, ठीक है। लास्ट वाले को ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा, 7/3 -1/6 +1/5, ठीक है। सो इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 30 ही आएगा, 30। 3 10 is 30, 10 into 7 70, then 6 5 is 30, 5 into -1 -5, then 5 6 is 30, 6 into +1 +6। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 70 + 6 will give you 76 और 76 - 5 will give you 71 और अपॉन 30। तो यहाँ से वैल्यू आएगी +71/30। So by adding all these three algebraic expressions, the answer which you will get is 3/4 x square minus 11/30 x plus 71/30, and this is the solution of your question number 9। और ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन है नहीं, तो आप इसको एज इट इज नोट कर सकते हैं कॉपी में। Now let's move to question number 14, which is saying that you have to simplify। I'll be telling two parts, part number 1 and part number 3. Part number 1, it is given 2m cube minus 5m square plus 3m minus 6 minus 5m cube plus 2m square minus 5m cube plus 2m square minus 8m plus 2 plus 6m plus 5, ठीक है। तो दिस इज अ सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। इसमें अलग अलग कॉमा नहीं लगा, इसका मतलब है कि अलग अलग एक्सप्रेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है। बट हमें ये देखना होगा क्या एक ही एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स हैं कि नहीं। सो m क्यूब का टर्म एक ये है एंड दिस इज वन मोर m क्यूब का टर्म। तो वी कैन क्लियरली सी कि ये टर्म और ये टर्म क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ नोट कर लेंगे। वी विल राइटिंग 2m क्यूब माइनस 5m क्यूब, ठीक है। दिस इज माइनस 5m स्क्वायर। विल बी लुकिंग कि m स्क्वायर दूसरा टर्म तो नहीं है। वी कैन सी कि ये जो टर्म है ये m स्क्वायर का टर्म है, तो ये लाइक टर्म्स है, तो साथ में लिखेंगे 2m स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज 3m और दूसरा m का टर्म है माइनस 8m और प्लस 6m। तो इन तीनों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि तीनों लाइक टर्म्स हैं। तो प्लस 3m माइनस 8m
और +6m, ठीक है। अब वेरिएबल्स खत्म, सिर्फ कांस्टेंट्स बचे। फर्स्ट कांस्टेंट इज दिस -6, देन दिस +2 एंड देन दिस +5। एंड वी नो दैट कि लाइक टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा सकता है। तो वी कैन क्लियरली सी कि 2m³ - 5m³ है, देयरफॉर वी नो दैट 2 - 5 विल गिव अस -3। तो यहां से जो वैल्यू आएगी -3m³ आएगी। इन दोनों को सॉल्व करके, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है तो इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो -5 और +2 विल गिव यू अगेन -3m², क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 5 - 2 3, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट इज ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तो 3m और 6m को ऐड कर लेंगे तो 9m हो जाएगा। 9m - 8m विल गिव यू 1m, और 1m को सिर्फ m लिखते हैं, so +m। नाउ कमिंग टू कांस्टेंट वैल्यूज, 5 + 2 7 and 7 - 6 1, so there will be +1। so from here we can say that after simplifying this question, the answer would be -3m³ - 3m² plus m plus 1, and this is the solution of your first part of question number 14. Let's see one more part. Part number 3. In part number 3, the question is given 3p² minus 2pq plus 5p plus 5p minus 4q plus 5pq minus 4q plus 5pq minus 3p plus 4p square minus 3p plus 4p square plus 3q plus 3q। अगेन द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, लाइक टर्म्स को एक साथ पाइल अप कर देंगे, ठीक है। जैसे 3p², p² का दूसरा टर्म देखेंगे ये है +4p², ठीक है। नाउ दिस इज -2pq, pq के दूसरे टर्म्स को देखेंगे, दिस इज प्लस का 5pq। नाउ दिस इज 5p लिखेंगे, p का दूसरा टर्म ढूंढेंगे -3p, ठीक है। दिस इज -4q, q का दूसरा टर्म देखेंगे तो +3q, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सारे लाइक टर्म्स को एक साथ नोट कर लिया, ठीक है। एंड वी नो दैट लाइक टर्म्स कुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दिस इज 4, दिस इज 3, तो 4 + 3 विल गिव यू 7p²। दिस इज -2 एंड दिस इज +5, +5 - 2 will give you +3pq। Okay, this is +5 - 3 will give you +2p, and then this is -4 and +3, माइनस प्लस माइनस साइन नेगेटिव का है, 4 की बड़ी वैल्यू, तो -q will be the so last solution is 7p² plus 3pq plus 2p minus q is the solution of your part number 3 of question number 14. So this is a completion of your exercise 12b. In our next class we will be starting with the subtraction of algebraic expressions. Thank you.